Good morning, students. Today I am starting your fifth class math. This is your book of math, Visualizing Mathematics, class 5. This is the book of your math. Very interesting book and as you know that math is very interesting subject. Math is very good subject. So you all like, I think that you all like math very fine. This is our first chapter, number and numeration. Numbers and numeration. This is our exercise first. This is revision exercise. Exercise first, revision exercise. Do you remember? क्या आपको याद है? The smallest 5-digit number, the greatest 6-digit number. First question is the smallest 5-digit number and the greatest 6-digit number. I want to ask some general things. Greatest 2-digit number is 99. 2 times 9. The greatest 2-digit number is 99 and smallest 2-digit number is 10. Greatest 3-digit number is 999, 999 and smallest 3-digit number is 100. Greatest 4-digit number is 9999 4 times, means 9999. This is smallest 4-digit number 1000. And greatest 5-digit number is 5 times 9 and smallest 5-digit number is 1, after that 40, 10,000. This is 99,999 and this is 10,000. This is greatest 5-digit number and this is smallest 5-digit number. Now I am telling to place value chart. First Indian place value system and second international place value system. First of all, I tell you what do you mean by Indian place value system. In Indian place value system, as we know that in first group there is name ones, second group thousand and third name is lakh and fourth name is crore. तो वंस ग्रुप में तीन चीज़ें होती हैं, वंस टेंस हंड्रेड. वंस ग्रुप में तीन चीज़ें होती हैं, वंस टेंस हंड्रेड. इन थाउजेंड में दो चीज़ें होती हैं, थाउजेंड एंड 10,000. लैख में दो चीज़ें होती हैं, लैख एंड 10 लाख. और करोड़ में दो चीज़ें होती हैं, करोड़ और 10 करोड़. मतलब इंडियन सिस्टम में फर्स्ट ग्रुप में तीन चीज़ें होती हैं, बाकी में सब में दो दो चीज़ें होती हैं. थाउजेंड में दो चीज़ें, थाउजेंड 10,000. लैख में दो चीज़ें, लैख 10 लाख. करोड़ में दो चीज़ें, करोड़ और 10 करोड़. But in first group there are three things: ones, tens, hundred. This is our Indian place value system. Now come to the second question. Write the numbers. First is 23,110. You have to write in numbers. 23,110. So how you write 23,000? 23,000. थाउजेंड में दो चीज़ें होती हैं, तो 23,110. In second, 50,544. 50,544. So 50,544. You can write like this. Similarly, 68,305. 68,000. 68,000. So this is 68,305. What is this? 79,797. And in this you are seeing that lakh में 1 lakh वाले कॉलम में 1 लिखा है, so it means 1,38,400 this, and this is 4,57,708. So in this way you can write these number. जैसे ये पूछा है 23,110. तो एज यू नो कि थाउजेंड में दो चीज़ें होती हैं, थाउजेंड के अंदर दो चीज़ें होती हैं. 23,000 ये लिखा है ना, 23,110. तो थाउजेंड में दो चीज़ें होती हैं, तो 23,000 वाला फिल हो गया, उसके बाद कॉमा, फिर लिखा है 110. 110 दिस इज 23,110. 23,110. इन
इसमें लिखा है 1,38,400, क्वेश्चन नंबर ई में। लैख में दो चीज़ें होती हैं, तो पहले हम लैख से स्टार्ट करते हैं 1 और इससे पहले 0 लगा देंगे, तो ये कंप्लीट हो गया लैख वाला कंप्लीट। 1,38,000, 38,000 वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद है 400, तो 400, तो व्हाट इज दिस 1,38,400। इफ़ यू वांट टू फिल, अगर आप इसको पूरा फिल करना चाहते हैं तो इससे पहले 0 लगा सकते हैं। 0 चाहे लगाएं और चाहे ना लगाएं। तो दिस इज 1,38,400। सिमिलरली 4,57,708 यू कैन राइट। तो लैख, तो 4 लाख, आफ्टर दैट क्या है 4 लाख के बाद 57,000 एंड 708 this is your complete. In this way you can write all the numbers. Now come to the write the number names. इसको आपको नंबर्स नेम लिखना है लाइक दिस। ये लिखा है पहला 27538। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी ऑल दिस नंबर, इसमें कॉमा कहाँ लगा है 27, उसके बाद कॉमा 538, दिस ऑल दिस गिवन नंबर्स। तो इसमें फर्स्ट में तो 3 के पहले कॉमा लगा है, फिर दो पे कॉमा लगा है, तो इट मीन्स दिस इज द इंडियन सिस्टम। ये आपका क्या है इंडियन सिस्टम है। ये 8 क्या है 1s 3 10s 5 100 है, दिस इज 1000 एंड दिस इज 10,000। तो व्हाट आई रीड इट 27,538, दिस इज 1s 10s 100 1000 10,000 lakh। तो व्हाट आई रीड इट 7,09,123। And what is this 18,678? And what is this 3,25,173? And what is this 54,005? 54,005. And what is this 43,725? This is 43,725. Now I am telling to international place value system. This is our international place value system. इसमें क्या होता है, इसमें 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप तो और भी होते हैं, 1s 1000 एंड मिलियन। आई एम टेलिंग अप टू मिलियन, 1s 1000 एंड मिलियंस। इन वंस में क्या होता है 1s 10s 100, 1000 में क्या होता है 1000 10,000 एंड 100,000, और मिलियंस में होता है मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। इंडियन सिस्टम में क्या होता है वंस में 3 चीज़ें होती हैं, बाकी सब में 2 चीज़ें होती हैं। और इंटरनेशनल में क्या होता है सब में 3 चीज़ें होती हैं, वंस में भी 3 चीज़ें, 1000 में भी 3 चीज़ें, मिलियंस में भी 3 चीज़ें। तो वंस में क्या है 1s 10s 100, 1000 में क्या है 1000 10,000 100,000, और मिलियन में क्या है मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। आई एम गिविंग some एग्जाम्पल, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट। सपोज दिस इज इंडियन सिस्टम एंड दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम। ये लिखा है 543271, तो इसको हम अगर रीड करते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, इसको हम क्या पढ़ेंगे 5,43,271। यही नंबर यहाँ लिखा है इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। तो 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, तो इसको पढ़ेंगे 543,271। दिस इज नेक्स्ट नंबर, तो ये है 37,48,344। सेम नंबर हियर है। तो इसमें देखें 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 एंड दिस इज मिलियन, तो इसको हम पढ़ेंगे 3,748,344 बिकॉज इट इज इंटरनेशनल सिस्टम। एंड दिस नंबर व्हाट आई रीड 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakh एंड करोड़, तो 9,84,32,471, 9,80,000, this is 8, 9,84,32,471। Same number here international, according to international. So what is this 98,432,471। मतलब कुल मिला के ये है कि इंटरनेशनल में हर
हर ग्रुप में 3-3 चीज़ें होती हैं, और इंडियन में फर्स्ट ग्रुप में 3, बाकी सब में 2-2 चीज़ें होती हैं। दिस इज इंडियन सिस्टम एंड दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे हमारे इंडियन में किसी को कहा जाता है कि वो अरे वो लोग बड़े करोड़पति हैं, लखपति हैं, तो वहाँ पर इंटरनेशनल में क्या कहा जाता है, मतलब अमेरिका कंट्री, जापान है, या आपका इंग्लैंड है, वहाँ पर क्या कहा जाता है, मिलेनियर कहा जाता है, या बिलेनियर, मिलेनियर, इस तरह का कहा जाता है। सो यही डिफरेंस है इंडियन और इंटरनेशनल में। इंडियन में फर्स्ट ग्रुप में 3 चीज़ें और बाकी में सब में 2-2 चीज़ें, और इंटरनेशनल में हर ग्रुप में 3-3 चीज़ें होती हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इट इज़ वेरी इजी, ये बहुत आसान है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 43345, 43,345। तो आई एम टेलिंग 2 मेथड, 4 लिखकर हाउ मेनी डिजिट्स के आगे कितनी डिजिट है, 4 डिजिट, तो 4 लिखकर 40, फिर प्लस 3 लिखकर 30, 3 के आगे 3 डिजिट है तो 30, फिर इस 3 के आगे 2 डिजिट है, 3 के आगे 2 जीरो लगा दिया, 4 के आगे 1 डिजिट है तो 4 के आगे 1 जीरो, और प्लस 5। इज इट इज द फर्स्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द इन एक्सपेंडेड फॉर्म। और सेकंड मेथड क्या है, 4 लिखकर 4 इंटू 1, और 4 के आगे जितनी डिजिट है उतनी जीरो, 1 लिखकर यहाँ पर 4 जीरो, प्लस 3 इंटू 1000, क्योंकि ये वाला 3 है, 3 के आगे 3 डिजिट है तो 3 इंटू 1 और 3 जीरो। नेक्स्ट 3 के लिए 3 इंटू 100, ऐसे 4 के लिए 4 इंटू 10, और लास्ट वाला 5 है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो 5 इंटू 1। दिस इज 2 मेथड फॉर एक्सपेंडेड एनी गिवन नंबर। सेकंड एग्जाम्पल 543179, तो 5 लिखकर हाउ मैनी डिजिट, 5 डिजिट, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 4 लिखकर 4 जीरो, 1 2 3 4, 3 लिखकर 3 जीरो, 1 लिखकर 2 जीरो, 7 लिखकर 1 जीरो, और 9 लास्ट। और सेकंड मेथड क्या है, 5 इंटू, ये लिखिए आप, 1 लिखकर उतनी जीरो लगा दीजिए, कितनी, 5 जीरो, 4 लिखकर 1 लिखिए, फिर 4 जीरो लगा दीजिए, फिर 3 लिखकर 3 इंटू 1 और फिर 3 जीरो। इस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हैं इन 2 मेथड, इन 2 वे। चाहे आप इस मेथड से करिए चाहे दिस मेथड, यू कैन अप्लाई एनी 2 मेथड, कोई भी 2 मेथड में से एक आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कम टू द दिस इज ग्रेटर साइन, दिस इज स्मॉलर साइन, एंड दिस इज इक्वल टू साइन। दिस इज 15 एंड दिस इज 25। तो आई राइट लाइक दिस, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ ये नोक होती है वो छोटा होता है। तो 15 इज स्मॉलर देन 25, या 25 इज ग्रेटर देन 15। जैसे ये लिखा है 20 और यहाँ लिखा है 47, तो इसमें कौन बड़ा है दोनों में, 47 बड़ा है तो ये होगा। जैसे लिखा है 37 और यहाँ लिखा है 17, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 37, तो 37 ऐसे। एंड दिस इज नंबर इज 11 एंड दिस इज ऑल्सो 11, तो बोथ आर इक्वल, तो जिसको इस साइन, तो दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज स्मॉलर देन, मतलब जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा, और जो छोटा होगा उसकी तरफ नो, ये जो पॉइंट है ये नोक होगी उसकी तरफ। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू सिलेक्ट विच इज ग्रेटर। जैसे 69,123, 67,297, इसमें आपको क्लियर हो रहा है कि कौन बड़ा है, 69,123 बड़ा है, इसकी तरफ ऐसे मुंह खुले रहेगा, इस तरह से आप इसको ऐसे फिल कर देंगे। सेकंड 15,395 एंड 15,395 बोथ आर सेम, तो ये इज इक्वल टू साइन आ जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू का साइन आएगा। जैसे दिस है 6,73,495 एंड 6,37,495, तो यहाँ लिखा है 6,73,000 और यहाँ लिखा है 6,37,000, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, तो ये इसकी तरफ मुँह खुल जाएगा ये। तो इन दिस वे यू कैन अप्लाई ऑल greater than, smaller than, and is equal to sign in this question. Write 4 number after. You have to find 4 number after. I am giving one example 54। मैंने कहा 54 के आगे 4 नंबर लिखो, 54 के आगे क्या आएगा 55। ये 55 आया कैसे, 54 में 1 प्लस किया 55 आया। अब 55 के आगे क्या आएगा 56, ये कैसे आया, 55 में 1 प्लस किया 56। ऐसे 56 के आगे आएगा 57, ये कैसे आया, 56 में 1 प्लस किया 57। ऐसे 57 के आगे क्या आएगा 58।
बोला सब में 1 प्लस करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है तो 1 प्लस किया 55, इसमें 1 प्लस किया नेक्स्ट नंबर, इसमें 1 प्लस किया नेक्स्ट नंबर, इसमें 1 प्लस किया नेक्स्ट नंबर। सेम इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन। इसमें आप 1 प्लस करेंगे, जैसे लिखा है 313472, तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 2 के नीचे लिख के 1 प्लस करेंगे, ये आएगा 313473, 473, दिस इज योर नंबर 313473, दिस इज द नेक्स्ट नंबर। अब इसके अगला निकालना तो इस 3 में 1 प्लस करेंगे तो ये आएगा 313474, लाइक दिस। मतलब सब में इसमें 1 प्लस किया ये आया, इसमें 1 प्लस किया ये आया। अब इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 313475। सिमिलरली यू कैन डू दिस 313476, दिस इज कंप्लीट। और इसमें 1 प्लस किया ये आया, इसमें 1 प्लस किया ये आया, इसमें 1 प्लस किया ये आया, इसमें 1 प्लस किया ये आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे 3897, दिस इज 38,897, इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 38,898, 7 में 1 प्लस किया 898 आ गया, तो 38,899, 38,899। फिर हम इसमें 1 प्लस करेंगे, जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर जैसे लिखा है 38,899, जब हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 9 1 10 हुआ, फिर यहाँ 0 हो जाएगा 9 1 10 और यहाँ आ जाएगा 900, ये हो जाएगा 38,900। फिर इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये आएगा 38,901। इन दिस वे यू कैन कंप्लीट ऑल 4 फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब जिसके भी आगे आपको नंबर निकालना है उसमें 1 प्लस करेंगे ये आएगा, 1 प्लस करेंगे ये आएगा, 1 प्लस करेंगे ये आएगा, 1 प्लस करेंगे ये आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसमें जो कलर डिजिट हैं उसका प्लेस वैल्यू चार्ट लिखना है। देयर आर 2 थिंग, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस कलर 7, 7 का फेस वैल्यू क्या है 7 है, और प्लेस वैल्यू क्या होगा 7 लिखकर, और 7 के आगे कितने नंबर हैं 1 2 3 4, तो 4 ही होगा। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज दिस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70,000। इन दिस क्वेश्चन प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9 लिखकर, इसके आगे एक डिजिट है तो एक 0, 90। इन दिस द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, 1 लिखकर, 1 के आगे कितनी डिजिट हैं 2 और 3 5, 5 डिजिट है, तो ये आ गया आपका, दिस इज योर प्लेस वैल्यू ऑफ 1। इसको हम क्या पढ़ेंगे 1 लाख, क्या पढ़ेंगे 1 लाख। ऐसे ही आप इसका फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे इसमें 5 का पूछा है तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 5, क्योंकि 5 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो बस ये होगा उसका 5। रीराइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। तो यू हैव टू सर्च, इसके अंदर आपको सर्च करना है कि सबसे छोटा कौन सा है। ये 73,000 लिखा है, 73, 37, 37, तो ये पक्का हो गया कि ये दोनों तो बड़े हैं, ये दोनों छोटे हैं 37,000, 37,000। अब ये क्या लिखा है 37,923 और ये 37,293, तो इट मीन्स इन चारों में सबसे छोटा क्या है ये है। पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर इसका आएगा। अब इसमें डिसाइड करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 73,293 एंड ये 73,923, तो इन दोनों में कौन छोटा है ये छोटा है, तो थर्ड नंबर पे ये आएगा और फोर्थ नंबर पर ये आएगा। दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर। पहले इसको लिखेंगे फिर इसको, फिर इसको, पहले इसको फिर इसको, फिर इसको और लास्ट में इसको। अब इसमें डिसाइड करना है, ये क्या लिखा है 1,23,456, ऐसे सब लिखा है 1 लाख 1 लाख करके। मतलब इसमें काउंट कर लेना है कि हाउ मेनी डिजिट, इसमें 6 डिजिट, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं। तो अब पहला नंबर 1 है 1 है 1 है 1 है,
उसके बाद यहाँ लिखा है 23,000, यहाँ 32,000, यहाँ 23,000, यहाँ 23,000। तो इन तीनों में डिसाइड करना है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो 1,23,000, 1,23,000, 1,23,000। यहाँ है 456, यहाँ है 546 और यहाँ है 564। तो सबसे छोटा ये हुआ, ये आपका सबसे छोटा है, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा। उसके बाद है ये सेकंड नंबर पे आएगा क्योंकि लिखा है 546, और थर्ड नंबर पे आएगा 1,23,564। और लास्ट में जो है ये जो लिखा है 1,32,000, ये आपका फोर्थ नंबर पे आएगा। तो 1 2 3 4। तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। दिस इज आवर असेंडिंग ऑर्डर। नाउ कम टू द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा। इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है। यहाँ 34 है, 43 है, 43 है, 34 है। तो इन दोनों में डिसाइड करना है कि कौन बड़ा है। 43,731 और ये 137। तो ये सबसे बड़ा है। फर्स्ट नंबर पे इसको लिखेंगे, सेकंड नंबर पर इसको, अब थर्ड नंबर पे इसमें डिसाइड करना है। ये 34,173 है, ये 34,371 है। तो थर्ड नंबर मतलब कुल मिला के इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये थर्ड नंबर पे ये आएगा और फोर्थ नंबर पर ये आएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, और लास्ट में सबसे छोटा ये। तो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। Form the smallest and greatest 6-digit number using the digit in how many digit? 3 4 5। There are 6 digit। इसमें 6 digit दिए हैं। How many digit? 6 digit। और इससे आपको 6 digit का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 है। पर 0 लिखना बेकार है पहले, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट के लिए। 1, उसके बाद 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 9। दिस इज आवर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। इसको क्या पढ़ेंगे, 1,02,469। दिस इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ दीज गिवन 6 डिजिट। इन 6 डिजिट जो दी गई हैं उससे ये सबसे छोटा नंबर बना, 1,02,469। अगर इनका बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे 9। आफ्टर दैट व्हाट यू राइट, 6, फिर 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। दिस इज आवर ग्रेटेस्ट नंबर बाय दीज डिजिट, 9,64,210। This is our 100, this is our 1000, this is our 10,000, this is our 1 lakh, and this is our 1 crore. These are numbers. तो 100 में कितनी जीरो होती हैं, 2 जीरो। 1000 में 3 जीरो होती हैं। ये लिखा है 1000, तो 1000 में 3 जीरो होती हैं। 10,000 में कितनी जीरो होती है, 3 जीरो। दिस इज 10,000, 3 जीरो। लाख में कितनी जीरो होती हैं, 5। 1 2 3 4 5। 1 लाख में 5 जीरो होती हैं। अब अगर मान लीजिए हमें लिखना है 55 लाख, 55, और उसके बाद हमें 5 जीरो लगानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5। इसे आवर 55 लाख, क्योंकि लाख में 5 जीरो होती हैं। करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, 7 जीरो होती हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, 7 जीरो होती हैं। तो 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, लाख में 5 जीरो, करोड़ में 7 जीरो। नाउ कम टू द क्वेश्चन दिस, fill in the blank। 1 lakh is equal to how many thousand? Now you see 1 lakh। आप 1 lakh को देखिए, 1 lakh, दिस इज 1 lakh। अब इसने पूछा कि 1 lakh में कितने थाउजेंड, हाउ many थाउजेंड इन 1 lakh। 1000 में कितनी जीरो होती हैं, 3 जीरो होती हैं। तो 3 जीरो को आप अलग कर लीजिए, ये 3 जीरो को आपने अलग कर लिया। बाकी जितना बचा वो हो गया आपका 100। तो 1 लाख में कितने थाउजेंड हुए, 100,000। 1 लाख में कितने थाउजेंड, 100,000। 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, बिकॉज 1000 में 3 जीरो होती हैं और 1 लाख में लिखा है 5 जीरो। तो 3 जीरो को अलग कर लिया क्योंकि तुमने 1000 पूछा है। तो बाकी कितना बचा, 100। तो 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। 10,000 इज इक्वल टू हाउ मनी, 100। 10,000 कहाँ है, दिस इज योर 10,000।
और 100 में 2 जीरो होती हैं, तो 2 जीरो को अलग कर लीजिए, ये 2 जीरो अलग हो गई, तो कितना बचा 100। तो इट मीन्स 10,000 इज इक्वल टू 100 100, 10,000 इज इक्वल टू 100 100। 1 lakh is equal to how many hundreds? 1 lakh is equal to how many hundreds? Where is 1 lakh? This is 1 lakh. This is our 1 lakh. ये आपका 1 lakh है। तो इसमें आप, और 100 में कितनी जीरो होती हैं? 2, तो 2 जीरो को अलग कर लीजिए, इन 2 जीरो को अलग कर लीजिए, 2 जीरो को अलग कर लिया, कितना बचा 1000। ये हुआ 1 lakh इज इक्वल टू 100 1000 100। 1 lakh इज इक्वल टू 1000 100। 1 lakh इज इक्वल टू 1000 100। 1000 में कितने 100 होते हैं? 1000 में दिस इज योर 1000 और दिस इज योर 100। तो 1000 में कितने 100? 2 जीरो निकाल दीजिए, 2 जीरो निकाल दिए, कितना बचा 10। तो 1000 इज इक्वल टू 10 100। 1000 इज इक्वल टू 10 100। इन दिस वे यू कैन डू this exercise. This is our revision exercise, so you complete this revision exercise. If you feel any problem in any topic, in any point, then you can share your problem. Thank you very much.